عمران خان کی صحت اور جیل میں ان کی قید تنہائی کے حوالے سے جس طرح سے خبریں پاکستان میں آ رہی تھیں اس کی گونج امریکہ میں بھی سنی گئی ہے۔ امریکہ کے نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹس کے بلکہ ریپبلکن آج کی وہاں پہ جن کی حکومت ہے ان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط کس کو لکھا گیا ہے؟ اقوام متحدہ کو نہیں، ہماری حکومت کو نہیں، بلکہ مارکو روبیو امریکہ کے وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا گیا ہے، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی قید کے بارے میں جس طرح سے تنہائی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جس طرح سے ان کی صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس پر تشویش کا اظہار خط میں کیا گیا ہے۔ اور یہ 13 ارکان کی طرف سے لکھا گیا خط ہے، جس میں ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، آج کی حکمران پارٹی کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کانگریس مین بھی شامل ہیں۔ آپ کے سامنے نام رکھ دیتے ہیں، پہلے خط کا تھوڑا سا متن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکہ کے 13 ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ کر عمران خان اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں حراست اور ان کی صحت و حالات کا معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی سابقہ رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ سے دونوں کے موجودہ حالات کا جائزہ لینے کو کہا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خط لکھنے والے کون کون ہیں۔ خط پر دستخط کرنے والوں میں جو ویلسن شامل ہیں، شہاد سبرامینن نے بھی اس خط پر دستخط کیے ہیں، اور دیگر دستخط کرنے والوں میں گیس بیلارک شامل ہیں، روکھنا ہیں، جیمز میگورن ہیں، پرمیلا جیاپال ہیں، اور ڈونلڈ بیئر جونیئر ہیں۔ الہام عمر کا بھی نام ان میں شامل ہے۔ فرینک پالون جونیئر اور گریگ کاسار نے بھی اس پر سائن کیے ہیں، اور آخری سائن کرنے والے اس میں راشدہ طلیب صاحبہ ہیں۔ ان کی طرف سے یہ سائن کیے گئے ہیں۔ عمران خان کو جس طرح سے جن حالات میں جیل میں رکھا گیا اور ان کی جس طرح کی صحت کی کنڈیشن ہے، اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رابطہ کریں۔ مارکو روبیو صاحب اس حوالے سے پاکستان سے بات کریں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بات کی جاتی ہے، اور کی جاتی ہے تو اس پر کیا عمل ہوتا ہے۔ ادھر مکمل طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اور عمران خان کی بہنوں کی طرف سے سرنڈر کیا گیا ہے۔ ملاقات کے لیے عمران خان کی بہن علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، ہمیں ان کی صحت پر بڑی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کا نام آئندہ ملاقات کے بعد نہیں لیں گے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے کوئی باہر آ کر ہم بات نہیں کریں گے، نہ کسی کا نام لیں گے، نہ کسی کا نام لینے سے مطلب یہ ہے جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کا عمران خان نام لے دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا، کئی وزراء کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی، ان کے وکلاء کی ملاقات اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ یہ باہر آ کے فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیتے یا پھر شخصیات کا نام لیتے اور سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کسی قسم کی سیاسی گفتگو عمران خان کے ملاقات کے بعد نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کا نام لیں گے۔ اسی طرح سے سہیل افریدی کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروا دی جائے، اور انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی، اور اس سے وہ پھر گئے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ اگر ہماری فوری طور پر ملاقات نہیں کرائی جاتی، ہماری یا ان کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء کی، عمران خان کی بہنوں کی، تو پھر ہم پورے پاکستان کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ گویا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں اس طرح سے احتجاج کیا جائے گا جس طرح سے ہم ڈی چوک میں احتجاج کے لیے آتے رہے۔ اس موقع پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ملاقات کرے گا، ان کی بہنیں ملاقات کریں گے، کوئی لیڈر ملاقات کرے گا، باہر آ کر بالکل بھی نہ کسی شخصیت کا نام لیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو کی جائے گی۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ ڈی چوک بنانے کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن اگلے روز شام کو ان کی طرف سے جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا تھا، وہ دھرنے کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد احتجاج کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب ان کا پورا زور ہے خیبر پختونخوا حکومت کا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ 27 ستمبر کو ایک لانگ مارچ کیا جائے، دھرنا دیا جائے جیل کے آگے آ کے، اڈیالہ جیل کے سامنے۔ اس حوالے سے شفیع جان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے۔ اس پر طلال چودھری نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر یہ لوگ 2 لاکھ لوگوں کو بھی یہاں پہ لے آئیں تو ہم حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا۔ ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ 2 لاکھ لوگ نہیں لا سکیں گے۔ اگر تحریک انصاف 20
20 लाख लोगों को वहाँ पे ले आती है, तो तलाल चौधरी साहब ने कहना है कि नहीं ये तो 20,000 हैं, 10,000 हैं, बल्कि इनकी तरफ से शायद ये कहा जाए कि ये तो 500 लोग हैं। इसलिए तलाल चौधरी के हारने की कोई वजह बनती ही नहीं। बात हमने शुरू की थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की बहनों की तरफ से और पार्टी की तरफ से मुकम्मल सरेंडर कर दिया गया कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात करवा दी जाए। कल मंगल का रोज था, कल तो मुलाकात नहीं हो सकी, तो देखते हैं कि कल जुमेरात के रोज भी मुलाकातों का दिन होता है, कल मुलाकात होती है या फिर नहीं होती। बाकी सुहेल अफरीदी ने 3 इंटरव्यू दिए हैं। एक तो इंटरव्यू उन्होंने जियो को दिया और दूसरा इंटरव्यू उनकी तरफ से ARY को दिया गया और तीसरा इंटरव्यू उनकी तरफ से एक्सप्रेस न्यूज को दिया गया है। ये कैसे मुमकिन हो गया कि सुहेल अफरीदी का इंटरव्यू हो भी जाए और टीवी पर नशर भी कर दिया जाए? ये हैरानी वाली बात है, तज्जुबखेज बात है और इसको मोजज़ाती ही कहा जाना चाहिए। और फिर सुहेल अफरीदी की तरफ से कहा गया कि मेरा इंटरव्यू करने वालों की तरफ से मुझे कमिट किया गया था, मेरे साथ उनकी तरफ से कमिटमेंट की गई थी कि हम आपका इंटरव्यू नशर करेंगे। तो ये कमिटमेंट कोई भी एंकर कैसे कर सकता है? तो सुहेल अफरीदी की तरफ से इसको इस तरह से नैरेट किया गया, इस तरह से बयान किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू करने वालों की तरफ से कहा गया, उन्होंने अहमद मीर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने इनका इंटरव्यू किया और मैंने कमिट किया है, मैंने इनके साथ वादा किया है कि आपका इंटरव्यू चलाया जाएगा। अहमद मीर साहब ने इतनी जुर्रत दिखाई और फिर जियो ने वो इंटरव्यू दिखा भी दिया। तो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि जिस तरह से इनकी तरफ से जुर्रत दिखाई गई, इन्होंने जिस तरह से कमिटमेंट मेरे साथ की थी और उन्होंने आगे भी कहा कि मैंने कमिटमेंट की इसलिए मैंने इंटरव्यू चलाना है। और फिर उन्होंने लगता तो ये है, जिस तरह से सुहेल अफरीदी कह रहे हैं, इससे लगता तो ये है कि उनकी तरफ से फिर सरेंडर कर दिया गया कि जनाब अहमद मीर साहब आपने इंटरव्यू कर लिया है तो फिर आप चला दें, जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ऐसा ही अनदेखा मंजरनामा इनके बयान से नजर आता है। तो सुहेल अफरीदी की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से इन एंकर्स की तरफ से जुर्रत का मुजाहरा किया गया, इसी तरह से अदलिया भी ऐसी ही जुर्रत का मुजाहरा करे और अदलिया भी इमरान खान के हवाले से ऐसे ही फैसले करे। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि क्या इन टीवी चैनल्स में, जियो हो, ARY हो, एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, इनमें इतनी हिम्मत, इतनी तड़, इतनी जुर्रत है कि ये कहें कि हमारी कमिटमेंट है, हमने कमिटमेंट किया, हम उस पर पूरा उतरेंगे और इंटरव्यू चलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से इनको कहा गया इंटरव्यू करने के लिए, उनके कहने के मुताबिक इन्होंने इंटरव्यू कर लिया। कैसे इंटरव्यू कर लिया? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज होते हुए नजर आते हैं। और उनकी तरफ से शहबाज गिल के हवाले से कहा गया कि उनकी ऐसे ही उड़ा दी गई खबर है कि मेरी कोई कोर कमांडर के साथ मुलाकात नहीं हुई, मेरी मोहसिन नकवी के साथ भी मुलाकात नहीं हुई, जबकि शहबाज गिल कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई है। और सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये बंदा शहबाज गिल, उन्होंने कोई उनके साथ बदतमीजी वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब इनको पता चलेगा कि मेरी मुलाकात नहीं हुई तो ये मुझसे मदद कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि मेरे पास 100 सबूत हैं कि इनकी मुलाकात हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, कोर कमांडर से मुलाकात हुई है, मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है, तो जिस तरह के हालात हैं बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो इनकी मुलाकात उस हवाले से हो सकती है। लेकिन कहने वाले जिस तरह से वो लोग कहते हैं कि इनकी मुलाकात इसलिए हुई है कि जलसे से पहले इनकी मुलाकात थी और इनको कहा गया, डराया गया, इनको खौफजदा किया गया कि तुमने किसी किस्म का ऐलान नहीं करना, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करना, धरने का ऐलान नहीं करना। तो इस हवाले से जो मुलाकात हुई है और इनकी तरफ से फिर ऐसा ही किया गया, इतना लंबा टाइम दे दिया गया, इतनी लंबी डेट दी गई और उनके कहने पर यह सारा कुछ किया गया है। जो भी है मुलाकात अगर हुई है और यकीनी तौर पर मुलाकात हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है, वहां पे अंदर बैठ के जो भी गुफ्तगू हुई है तीनों के माबैन हुई है, इसमें कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये गुफ्तगू हुई है। बहरहाल वहां पे जिस तरह की सूरत हाल है, एक दिन में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा भी इनके साथ मुलाकातें हो सकती हैं, क्योंकि एक वजीर दाखिला और दूसरे का बराह रास्त अमल दखल है। जिस तरह के वहां पे दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए मुलाकात अगर हुई है तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि मुलाकात हुई है। ऐसे ही उनकी तरफ से इल्जाम लगा दिए गए और सुहेल अफरीदी भी खाम खा की सफाइयां दे रहे हैं और गलत किस्म की सफाइयां उनकी तरफ से दी जा रही हैं और बिलाजवाज किस्म की ये सफाइयां हैं। बाकी एक पाकिस्तान से भागे हुए वजाहत सईद साहब हैं, ये साबिक फौजी और उनकी तरफ से जिस तरह की नॉनसेंस किस्म की गुफ्तगू की गई है, बल्कि तो इस पर तबसरा किया जाना चाहिए एस अहमद की तरफ से। ये इनको
खरी खरी सुना सकते हैं। उनकी तरफ से जिस तरह से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, घटिया किस्म की जो बात उनकी तरफ से की गई है इमरान खान के हवाले से, उन्होंने कहा कि मुझे फौज के अंदर हाजिर सरवत 3 लोगों ने कहा है कि इमरान खान नो मोर, इमरान खान जेल में मर चुके हैं, ये इनकी तरफ से तासर दिया गया। और जिस तरह से रिक्कत अमेज लहजे में ये बात कर रहे थे, उसे लगता था कि इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है, जिसकी कतई तौर पर जरूरत नहीं थी अगर इनको किसी ने अंदर से बताया था। वैसे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि फौज के अंदर किसी को पता हो कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ क्या हो रही है। उन्होंने कहा कि फौज के अंदर से मुझे कुछ लोगों की तरफ से बताया गया है। तो ये बंदा जिसकी तरफ से ऐसी बात कर दी गई, नॉनसेंस किस्म की बात कर दी गई कि इमरान खान नो मोर, इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ये गधों वाली बात है। और जिन्होंने इनको ये बताया वो गधे के भी बाप हैं। और इससे अंदाजा कर लिया जाए कि किस तरह के लोग हमारी फौज में मौजूद हैं। ये मुमकिन नहीं है कि फौज में इस तरह के गधे हो सकते हैं। तो इनकी तरफ से जो बात कर दी गई है, अपने अंदर से इन्होंने खुद ही ये मनसूबा बंदी करके बात कर दी, जिसकी सदाकत कतई तौर पर नहीं है। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ इनकी तरफ से ये खबर दी गई। और ये 2 रोज कबल की खबर है। और उस मौके पर जिसने भी ये सुना कितना ज्यादा परेशान हुआ, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इससे अफसुर्दा हुए, रंजीदा हुए, और कई तो जज्बात की रौ में भी बह गए होंगे। तो बाकी ये मुमकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं है कि पाक फौज के अंदर एक सिस्टम है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज के अंदर से इस तरह की कोई मुखबरी बाहर बैठे लोगों को करे। अगर कोई ऐसा करता है तो 1 मिनट से पहले एक्शन हो जाता है। बाकी मोहम्मद हुसैन पीटीआई का ये एक कारकुन था। इसका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया जाता है और जिला खैबर से इनका तल्लुक है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वहां से चला। और कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये जिले शाह की तरह ही स्पेशल लड़का था। ये इस्लामाबाद आ जाता है, रावलपिंडी आ जाता है, और रावलपिंडी GHQ के सामने इसकी तरफ से गाड़ी पर फायरिंग कर दी जाती है। पाक फौज की पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी, जिसमें से एक जवान शहीद हो गया और 2 जख्मी हो गए। और जवाबी फायरिंग में ये लड़का भी मारा गया। पीटीआई से इसका तल्लुक बताया जाता है। और फिर इसका एतराफ भी कलिया शफी जान की तरफ से कहा गया कि वाकई ये पीटीआई का कारकुन है। और पीटीआई की तरफ से बाकायदा तस्लीम किया गया, ना सिर्फ शफी जान की तरफ से बल्कि बाकी लीडरशिप की तरफ से भी इसका पीटीआई से तल्लुक है। और ये भी कहा गया है कि ये स्पेशल बच्चा था। बहरहाल स्पेशल बच्चा कह के इसके जुर्म को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही जुर्म की शिद्दत कम होती है। बहरहाल उसने जो कुछ किया उसका खमियाजा भी उसको भुगतना पड़ गया। तो बाकी तारड़ साहब की तरफ से पूरी पार्टी को इसमें लपेट दिया गया। तो अगर किसी ने सच्चाई की तरफ जाना है तो इन झूठों की बात ना सुने जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीटीआई की तरफ से भेजा गया बंदा था। आप गैर जानबदार मीडिया से इस हवाले से खबरें ले सकते हैं। बहरहाल इसका ड्रॉप सीन हो गया है। अगर किसी के माँ पर ये वहां पे आया था तो उसकी पकड़ भी हो जाएगी, वो भी गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। तो बाकी अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है तो वो भी काबिले माफी नहीं है। तो तारड़ साहब इधर उधर की तड़ ना करें, बल्कि अगर पीटीआई इसमें मुलव्वस है तो अब तक इनको लीडरों को जिसमें मुलव्वस थे, जो इनके पीछे थे, जो मोहम्मद हुसैन के पीछे थे, उनको अभी तक तो पकड़ लिया जाना चाहिए था। अगर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी बड़े लीडर को, तो फिर सब मिले कि तारड़ साहब की तरफ से पैर बांध कर सफेद झूठ बोला गया है। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।